ये आपके लिए एज एन एक्टर चैलेंजिंग वक्त नहीं था फिर? क्योंकि एक जो मैं बात करूं कि अक्सर ये क्रिटिसिज्म आता था कि मावरा की एक्टिंग तो इतनी कोई नहीं है, ये तो इंस्टाग्राम की वजह से है, एंड वन डे यू डिसाइड कि चलो मैं इंस्टाग्राम भी नहीं करूंगी। हाँ. और अभी तक एक्टिंग का भी ऐसा नहीं था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि वाह वाह, मतलब सब बात की तारीफें होना शुरू हुई थी, बट द काइंड ऑफ प्रेज दैट यू गेटिंग नाउ फॉर योर परफॉर्मेंसेज, ऐसा नहीं था सीन। सो वर यू नॉट इनसिक्योर एट ऑल कि यार कि अच्छा मैं नहीं पोस्ट कर रही, अब किसी और के ज्यादा फॉलोइंग हो जाएगी? बिकॉज वी नो हाँ. इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग का मतलब ऑल्सो मीन्स अ लॉट ऑफ मनी, Yeah. right? Because people get their campaigns and everything, and a lot of people actually now say कि हमें रोल्स भी इस वजह से मिलते हैं कि हमारी इंस्टाग्राम पे इतनी फॉलोइंग है, बिकॉज यूट्यूब के व्यूज ड्राइव होते हैं सारी चीजें। Right. एंड फॉर यू टू बी नंबर वन इन दैट ऑन दैट लेवल टू से कि यार नहीं मैंने नहीं पोस्ट करना, हाँ. to me it doesn't make sense by the way. No, it makes complete sense to me. Because, I remember it very clearly after Sanam Teri Kasam that I was sitting with Momina Duraiz, who's produced most of my work that I've done in Pakistan. And I was really heartbroken over not getting the due attention as an actor. Because when I did my film, a lot of critics, even outside of Pakistan, said great things about my performance. But in Pakistan, every intro still started with the social media queen or sensation or, influencer, whatever words they used at that time. And then, Masala Awards, और उस पे भी हम इसीलिए गए थे क्योंकि social media और उस तरह की चीजें. तो That's the award they gave you there. Yeah, the social media sensation, yeah. तो उस टाइम पे आई रिमेम्बर कि मोमिना ने मुझे कुछ स्क्रिप्ट्स ऑफर किए हुए थे और मैं उनके साथ बैठी हुई थी डिस्कशन में, और मैं एकदम से परेशान हो गई. मैंने कहा मैंने नहीं करनी एक्टिंग. मैंने कहा क्योंकि मुझे रिकग्निशन ही नहीं मिलती एज एन एक्टर. मैं कितनी भी मेहनत करती हूँ वो दब जाता है किसी चीज़ के नीचे, किसी रेड कार्पेट लुक के नीचे या किसी, तो मेरा फिर दिल बुरा होता है. सो मोमिना ने मुझे ये बोला उस टाइम पे, विच वॉज आई थिंक वेरी ट्रू, एंड आई टुक दैट एडवाइस वेरी सीरियसली. शी सेड, मावरा, you cannot complain that people are not giving attention to the actor in you because, oh, poor you, they're giving attention to the star in you, And she said it in a very light, very advice के तरीके से उन्होंने मुझे बात कही कि कोई सैड होने की बात है कि लोग, और मुझे वो बात सही लगी उनकी कि क्योंकि अगर ओवरशैडो हो भी रहा है तो वो भी मेरी अपनी ही एक साइड है. एंड आई थिंक उससे ऑनवर्ड्स फिर सम्मी, आंगन, आई केप्ट दैट एटीट्यूड कि अच्छा ठीक है, इवन इफ दे डोंट थिंक आई एम अ गुड एक्टर और I don't work as hard as other actors do, it's okay. I'll keep working hard because I can always, claim that even if I'm not the most talented person in a room, I'm definitely the hardest working person in a room. तो मैंने सोचा ये मेरी strength है and I'm just going to take this forward. I think by the time I reached Sabat, it was not only कि मैं इसलिए बंद कर दूँ कि मेरी acting पे attention आए. Yes, I wanted people to pay attention to my work more than my Instagram. But I also, I think I was done. I was done taking the responsibility for Instagram. Insecurity नहीं आई जैसे मैं पूछ रहा. आई होती तो मैं पोस्ट कर देती और चीज़ें वापस सही हो जाती. But I think I wanted to get rid of that responsibility and that constant tag. कि it's okay, कर लिया इतने साल तक. You've had that tag and बस it's okay बस अब. And I think I genuinely got done with it. अभी भी जिस तरह I don't think I must have posted 10 days ago. But sometimes I post thrice in a day when I'm having that day. But I don't want to be under any pressure कि मैं रोज. But now your social media is not the center. Yeah. It's not even a topic of discussion it's anymore. It's not a job anymore for me. Yes, it does contribute to my job. You do make money from your Instagram. But I think that now comes in a package with the work I do. But I'm also saying these things, Mavra, and asking these things because a lot of young girls look up to you and a lot of young girls want to become influencers. So उनको ये पता होनी चाहिए सारी बातें कि अगर आप इन्फ्लुएंसर वाला रूट अपनाते हो तो फिर उसके ये चैलेंजेस हैं. अगर आपने एक्टर बनना है और अगर आपने अपना टैलेंट बनवाना है तो फिर उसका रूट फर्क है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप दोनों कश्तियों पे एक टाइम पे सवार नहीं हो सकते या हो सकते हैं? Honestly, I'm not the best person to answer this question because I've never been completely on the influencer side. So I don't know what that journey could be like. How do you become one? I don't know. But without knowing, you were the influencer. That's what I'm saying. I became an actor first.
I just happened to have Instagram following. It's not like I actively did something. तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं actively तो मैं एडवाइस कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अगर किसी को एक्टर बनना है तो मैं ये एडवाइस ज़रूर दे सकती हूँ कि just work hard. Instagram will come along. Social media following will come along. You know, it just happens on its own. काम बनवाओ तो हाँ, आई थिंक ज़्यादा अगर आपको एक्टर बनना है तो मेन आपका काम ही सब कुछ है. आपकी फॉलोइंग आ जाती है और ना भी आए और चली भी जाए तो भी उससे आपकी परफॉर्मेंसेस को फर्क नहीं पड़ता, ना आपके व्यूज को फर्क पड़ता है. पोस्ट सबात जो आपने कैरेक्टर्स चूज किए ये सारे बड़े देखा जाए तो हैवी वॉच. किस्सा मेहरबानों का, नोरोज, यू नो, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बट अगेन नॉट अ इजी वॉच. नीम, नाउ जफा, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है कि यार ये मैंने ये पिक करना है? आपके पास जो स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, आई एम श्योर हर तरह के स्क्रिप्ट्स आ रहे होंगे, उनमें से ये वाले आपने क्यों चूज किए और यही क्यों चूज किए? You know, like I said, initially my decision was not intentional. Sabat happened, and while performing Sabat, I realized there are messages, especially that लड़कियां गाड़ियां चलाती हैं वाला जो वो आज तक शेयर होता है. औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने वाले आप होते कौन हैं? तो मुझे कंटेंट की पावर भी ज़्यादा रियलाइज हो गई थी ड्यूरिंग सबात, दैट आपकी जो बात है, आपका जो मैसेज है वो दूर तक जा रहा है और जो लोग आपको देख रहे हैं, खास तौर पे यंगर गर्ल्स हु आर वाचिंग मी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इवन द वर्क आई डू, नॉट जस्ट हु आई एम एज मावरा, बट जो मेरे कैरेक्टर्स हैं उनसे भी वो इन्फ्लुएंस होती हैं. तो आई थिंक उसके बाद से मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास ज़्यादा डेफिनेटली हो गया था. तो उसके बाद जो मेरे पास स्क्रिप्ट्स आए, मे बी उसकी सिलेक्शन में सबकॉन्शियसली इन चीज़ों का रोल होगा. मेहरबानों आई फाउंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ यू नो व्हाट हैपेंस इन द स्क्रिप्ट, और उसके ऊपर हमने बैठ के बहुत काम भी किया था क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो मुझे लगा था कि करनी और कहनी ज़रूरी हैं. मेहरबानों के बाद क्या किया था? नौरोज. हाँ, तो नौरोज मैंने बिल्कुल भी, नौरोज और नीम चले तो साथ साथ, लेकिन मैंने शूट नौरोज पहले शूट किया था. और नौरोज क्योंकि मेरे पास आया तो मेरे लिए ये रीज़न काफ़ी था कि शहजाद कश्मीरी डायरेक्ट कर रहे हैं और काशिफ अनवर ने लिखा है. मेरे लिए ये रीज़न बहुत था. मैंने दिल में अपने ये सोचने के बाद कि मैं नौरोज़ कर रही हूँ, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा है. तो नौरोज़ करने की वजह ये थी कि मुझे उस टीम से बहुत हाई होप्स रही हैं हमेशा और बहुत फेथ रहा है बिकॉज ऑफ हाउ सबात यू नो पैंड आउट. आई फेल्ट वेरी लकी कि वो लोग फिर से मेरे पास यू नो नौरोज़ की स्क्रिप्ट लेकर आ गए. एंड देन व्हेन आई ओपन द स्क्रिप्ट, और वो जिस तरह से वो कहानी बड़ी यूनिक थी कि एक लड़की है पहाड़ों में, अ यंगर गर्ल, and Shahzad bhai told me that the girl is 17, 18. So I was excited कि you know I'm going to lose some weight for this, and I lost about 5-6 kgs to play Rishtina. So I think उसमें वो excitement थी. फिर नौरोज़ में भी आगे messages थे, which was not the primary reason why I chose it. Neem, yes, Neem I chose for the writing, for the messages, for what was being said to the audience through the platform. And then I think Jaffa, yes, I chose Jaffa because of the message, but I also feel that by the time I was doing Jaffa, I wanted to do something which is more like light. मैंने मोमिना से कहा भी, मैंने कहा मुझे कुछ लाइट करना है, मुझे नहीं मैसेजेस करने हैं, अब मुझे कुछ ना मज़ेदार करना है जो हल्का फुल्का. टीचर बन के थक गई मैम. बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल एग्री नहीं करती मैं इस बात से. लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो अच्छा लगता है कि लोग मेरे थ्रू अगर कुछ सीख रहे हैं तो मैं तो इस बात से थकूंगी नहीं कभी. लेकिन मैंने कहा अच्छी बात है टू काइंड ऑफ ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू थिंग्स विच. लेकिन जफा लाइट वॉच तो नहीं था है? नहीं, मैं कह रही हूँ जफा के वक्त मैं मोमिना से कह रही थी तो शी सेड नहीं अभी जफा करो, इसके बाद कर लेना. जो बिकॉज शी हैड मेड अप हर माइंड, शी रियली वांटेड मी टू डू जफा. और जफा में बहुत सारी चीज़ें थी मेरे लिए जो बहुत कंसर्निंग थी.